Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Helawat, and we are doing the chapter The Microbial World. We are dealing with microorganisms. Right, everyone? And I hope you all are safe. Okay. Now, coming to you can say we are talking about the microorganisms, and in the previous modules we have talked about the different kinds of microorganisms. Now, in this particular module, we'll be talking about the uses of microorganisms. What are the different uses? Okay, the uses of microorganisms. Microorganisms. Now, how these microorganisms, they are useful to us. See, we know microorganisms, they may be useful, they may be harmful to human beings. But here in this module, we'll talk about the various uses that are helpful to us. So the very first is that microorganisms, they are used in food and beverage industry. वो food और beverage industry में extensively use किए जाते हैं to prepare the various amounts of substances. Like, see, you must have heard whenever we have to convert the milk into curd. अगर हमें दूध से दही बनाना है बच्चे, तो हम क्या करते हैं? Tell me, what your mother does if you have any idea? Yes, your mother mixes a small amount of curd into the milk. A spoon of curd into the milk, and within 5 to 6 hours we will observe that all curd, right? So what is there in this curd? Any idea, beta? In the curd, there is a bacteria which is called as lactobacillus. Okay, this bacteria is present in the curd, and this bacteria basically converts the milk, the sugar which is present in the milk, into the lactic acid. And that is why the milk is converted into curd. ठीक है? हम दूध से दही बनाते हैं क्योंकि दही के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. और ये जो बैक्टीरिया है, ये शुगर, जो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है. एंड दैट बेसिकली इज अ प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स दी योर शुगर इनटू अल्कोहल, ओके, और एन एसिड. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. सो दूध से दही बनाने के काम आता है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज. The next is, we know that we can make bread, isn't it? हम bread खाते हैं, dosas, idlis and dhoklas. All these preparations that we are basically making in our kitchen, all of these preparations, they require yeast. Okay, I hope you remember yeast is a fungus. It's a unicellular fungus, right? So we are using a unicellular fungus in the preparation of all these beverages. Apart from this, the yeast is also used to prepare some alcoholic drinks like wine and beer. ठीक है, हम इंडस्ट्रीज में ईस्ट को यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को वाइन और बियर में कन्वर्ट करने के लिए, राइट? वी कैन मेक अल्कोहल फ्रॉम द व्हीट ऑल्सो. वी कैन मेक एपीफिज. एग्जाम्पल, आपने एपीफिज सुना है? आपने एपीफिज, यू हर्ड अबाउट एपीफिज? आपने एपीफिज सुना है जो एप्पल से बनता है? दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ईस्ट. तो जो एपीफिज है वो आपकी एप्पल के फर्मेंटेशन से बनती है. ओके, नेक्स्ट, ये जो ईस्ट एंड बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये जिस भी प्रिपरेशन में प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब वो उस फूड के अंदर कुछ पर्टिकुलर विटामिन को इंक्रीज कर देते हैं और इसीलिए ये मेडिसिन बनाने के काम भी आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन एक हार्मोन होता है बेटा जो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है. ठीक है, जिन लोगों के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, वो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको हम डायबिटिक पेशेंट कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? सो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ईस्ट हैं, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर इंसुलिन. और इंसुलिन जो है ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी नॉर्मल रहे. नॉर्मली इन आवर बॉडी इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है विच इज कॉल्ड एज
pancreas that produces the insulin. और इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है शुगर के लेवल को कंट्रोल करना. बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है उसे ये कंट्रोल करता है, उसे लो रखता है ब्लड में. सो इट बेसिकली कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल. ओके, और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसीलिए शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है इंडिविजुअल्स को. और ऐसे पेशेंट्स को हम इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन के थ्रू देते हैं. ठीक है, और ये जो इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन दिया जा रहा है ये कहां से प्रिपेयर हो रहा है? ईस्टर बैक्टीरिया से इंडस्ट्रीज में. Then the bacteria or the microorganisms, ये they also increase the soil fertility. ठीक है, ये soil fertility को भी increase करते हैं. देखिए soil के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. The soil contains nitrogen and it is in the form of nitrates and nitrites. किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज हैं आपके, बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन दी रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है. ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टॉक, ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये नाइट्रोजन से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाते हैं या अमोनिया बनाते हैं और तभी सॉइल इन चीजों को एब्जॉर्ब कर पाती है. सो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स एंड देन द सॉइल कैन इजीली यूज देम. इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ओके, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स. The next is the microorganisms. They help in cleaning the environment. Microorganisms जो है ये environment को clean करने में help करते हैं because these organisms they eat the dead and decaying matter. Okay, they eat or they decompose the dead and decaying matter and convert them into simple substances and these simple substances are then used by the plants. ठीक है, समझ आई मेरी बात? ओके, सो जो डेड मैटर होता है, डेड मैटर है, उसको ये कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में. ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड देन दी सिंपल सब्सटेंसेस कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल. सॉइल फिर इन सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है. ओके बेटा जी, यस. और जब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम वेस्ट वाटर में ऐड करते हैं बेटा, ओके, वेस्ट वाटर में जब ऐड करते हैं तो अगेन दे विल रिलीज जो एंजाइम्स इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो एंजाइम्स वेस्ट वाटर को क्लीन करते हैं. सो फ्रेश वाटर, द वेस्ट वाटर विच इज रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम आवर हाउसेज, when these microorganisms they are added, so these microorganisms they also clean the water. ठीक है, ये पानी को भी साफ करते हैं. दूसरा जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर इन बैक्टीरियाज को हम काउडंग में एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, बैक्टीरियाज व्हेन एडेड टू प्लांट और एनिमल वेस्ट देन दे प्रोड्यूस्ड अ बायोगैस. ठीक है, ये एक बायोगैस, एक गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं बायोगैस. और ये बायोगैस जो है हम घर में इट कैन बी यूज्ड इन हाउसेस फॉर कुकिंग फूड और फॉर एज अ इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउसेस. ठीक है, अब इतना सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं बेटा. अपार्ट फ्रॉम दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, दे आर इको फ्रेंडली मीन्स दे डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट. तो उनको हम एक इन अ वे इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड करने के लिए. ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जो वो कॉपर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, यानी कॉपर को जब हम रिमूव करते हैं उसके अंदर से जब इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस में यूज होते हैं. Apart from this, some microorganisms they are used in the production of perfumes, ethanol and steroids. Perfumes बनाने में, ethanol बनाने में, steroids produce करने में help करते हैं. So I hope you understood the all concept or the uses of microorganism. So these are the different ways by which microorganisms help us in our daily life, right?
Let's summarize the whole concept. So microorganisms को हम commercial purpose में use करते हैं. Microorganisms का हमारे पास medicinal use है. Microorganisms soil fertility को increase करते हैं. Microorganisms environment को clean करते हैं, right? So in totality they help us in many ways. Okay. Let's come to your homework for today then. So first of all, you will be making notes of this topic and then you will read or go through the page numbers 25 to 28, and if there is any doubt, any query if you have, you will ask me. Okay? Okay everyone? Okay, bye everyone.